لیکن بات بگڑنے پر رنگے ہاتھوں گرفتاری کا خطرہ میرے سر پر تلوار کی طرح منڈلا رہا تھا۔ خدا خدا کر کے روشن خان خوش و خرم واپس لوٹ آیا۔ اندھیرے میں کسی نے تیز وسل بجا کر کسی کو کوئی اشارہ دیا اور روشن خان نے کوسٹر کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ اس بار اس نے ہیڈ لیمپس روشن کیے بغیر گاڑی آگے بڑھائی تھی، اس لیے رفتار بہت سست تھی۔ پارکنگ لیمپس کی روشنی زیادہ دور تک کام نہیں کر رہی تھی۔ باہر پھیلے ہوئے گور اندھیرے میں ہمیں سنسناتے ہوئے تاریک تر درختوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن روشن خان کچے راستے پر اسٹیئرنگ وہیل کو دائیں بائیں گھما کر یوں ڈرائیونگ کر رہا تھا جیسے اس علاقے کا چپا چپا اس کا دیکھا بھالا ہو۔ ڈیش بورڈ کی رنگ برنگی روشنیوں کے مدھم انعکاس میں اس کا چہرہ پورا اعتماد لگ رہا تھا۔ اب ہم افغانستان سے نکل کر آزاد پٹی میں آ گئے ہیں۔ چند منٹ بعد روشن خان نے وہ انکشاف کر کے مجھے ایک عجیب سی سنسنی میں مبتلا کر دیا۔ چنگارا ویلی میں گزارے ہوئے خوابناک شب و روز کے بعد یہ احساس بہت ہیجان انگیز تھا کہ ہم اپنی سرزمین سے بس چند قدم کے فاصلے پر ہیں۔ ساری روشنیاں بجھا دو۔ ویرا نے نیم ہذیانی لہجے میں روشن خان سے سرگوشی کی۔ کیوں؟ اس نے عجیب سا لہجے میں سوال کیا۔ کہیں پاکستان والے کوسٹر کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر فائر نہ کھولتے۔ وہ زور سے ہنس پڑا۔ دکھ کی بات یہی ہے کہ ہمیں اپنوں کو رشوت دینا پڑتی ہے، دوسری طرف والے کچھ نہیں مانگتے بلکہ چشم پوشی سے کام لیتے ہیں۔ انہیں ہدایت ہے کہ جنگ کے ستائے ہوئے خاندانوں کو سرحد پار کرنے سے نہ روکا جائے۔ اس طرح پہنچتے ہی ہم پکی سڑک پکڑ لیں گے، لیکن اس کوسٹر میں تو کوئی بھی جنگ کا ستایا ہوا نہیں ہے۔ غزالہ حیرت سے بولی۔ نہ ہو مگر وہ ہر آنے والے کو ستم زدہ مہاجر سمجھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تم بھی یہی سمجھ لو، لیکن یہ اصل مہاجروں کی حق تلفی ہے۔ غزالہ نے ویرا سے مخاطب ہو کر کہا، تم کہاں کی باتیں سوچ رہی ہو؟ اس دور میں وہی کامیاب رہتا ہے جو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ہر ایک کو روندتا ہوا آگے نکل جائے۔ اس وقت اصول کی نہیں، بس اپنے فائدے کی بات سوچو، ویرا تلخی سے بولی۔ غزالہ خاموش ہو گئی۔ کوسٹر ہچکولے کھاتی ہوئی پاکستانی علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ ادھر پہنچتے ہی روشن خان نے کوسٹر کے ہیڈ لیمپس روشن کر کے اپنی کامیابی کا اعلان کیا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ کچے راستے پر زیادہ دیر سفر نہیں کرنا پڑا۔ روشن خان اس علاقے سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کس کس رخ پر مڑنے کے بعد پختہ سڑک تک پہنچنا ممکن ہو سکتا ہے۔ جو ہی کوسٹر سڑک پر چڑھی، روشن خان نے اندرونی بتیاں بھی روشن کر دی اور تھکے ہارے مسافروں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ تورخم کی سرحدی چیک پوسٹ پیچھے رہ گئی تھی اور ہمارا قافلہ کوہ سلیمان میں واقع درہ خیبر کی تاریخی گزرگاہ سے لنڈی کوتل کی طرف جا رہا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں صرف سڑک پر ملکی قوانین کا نفاذ ہوتا تھا اور سڑک سے نیچے آزاد قبائل کے اپنے روایتی قوانین کا اطلاق ہوتا تھا۔ آزاد قبائل کے معاشرتی نظام میں دور جدید کی عدالتوں اور پرپیچ قانونی مشگافیوں یا وکالت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ قانون کی سربلندی اور نفاذ کی ذمہ داری معزز جرگے پر ہوتی ہے اور جرگہ فریقین کے بیان سننے اور سادہ عقلی طریقوں سے جرا کر کے اپنا فیصلہ صادر کر دیتا ہے، جسے تسلیم کرنا ہر قبائلی پر فرض ہوتا ہے۔ جرگے کے فیصلوں سے انحراف کرنے والے کو اس زمین پر کہیں امان نہیں ملتی۔ رات کی تاریکی میں وہ اونچے اونچے پہاڑ بازوبان خاموشی اپنی عظمت کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ ان راستوں سے کتنے ہی فاتح اور سرما گزر کر برصغیر کی طرف آئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں نے خیبر کی ان گن تاریک راتوں میں ہیبت و جبروت کے رنگ بھرے تھے، مگر پھر چشمہ فلک نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی متکبر فاتح ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکا۔ بس تاریخ میں اپنا برا بھلا نام لکھوا کر منو مٹی کے نیچے جا سویا۔ وہ قہر اور دبدبے کے لیے شہرت رکھنے والے جنگجو حکمران تھے جو زمین اور دولت کی ہوس میں اس راستے کو پامال کرتے رہے تھے، لیکن ہماری کوسٹر میں نئے عہد کے دو فری لانسر سوار تھے جو اپنے دلوں میں ان صفاق سرماؤں سے زیادہ خطرناک عزائم لے کر خیبر کے اس راستے پر محو سفر تھے۔ افغان علاقے سے اپنی سرحد میں آ جانے کے بعد مجھے پورا یقین تھا کہ دوسروں کی طرح ایلن اور پیٹر بھی عبرتناک انجام سے دو چار ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ ٹلان اور خمدار پہاڑی سڑک پر سفر کرتے ہوئے آخرکار ہم لنڈی کوتل پہنچ ہی گئے۔ کسی زمانے میں وہ سرحدی تجارت اور غیر ملکی اشیاء تعیش کی خرید و فروخت کا واحد مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں تند خوک دکاندار اپنی شرائط پر مال فروخت کیا کرتے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ لنڈی کوتل نے ایک بڑے قصبے کی صورت اختیار کر لی تھی، جہاں خاصی آبادی ہونے کے ساتھ روزمرہ زندگی کی دیگر سہولیات بھی میسر آنے لگی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں رہنے والوں کی معاشرت پر بیرونی اثرات کی چاپ خاصی گہری ہو چلی تھی۔ لنڈی کوتل سے گزرنے والی سڑک کے کنارے ٹرکوں اور گاڑیوں کی مرمت کے متعدد ورکشاپ بند پڑے ہوئے تھے، لیکن چند مقامات پر برقی روشنی میں اس وقت بھی کام ہو رہا تھا۔ اپنی گاڑیوں کا کام ختم ہونے کے انتظار میں ٹرکوں کا عملہ بے فکری سے بان کی چارپائیوں پر لیٹا بیٹھا تھا۔
इस बारूनी टुकड़े में एक चाय खाना भी खुला हुआ था, जहां ऊंचे चबूतरे पर कोयलों का चूल्हा रोशन था और इस पर चाय खोल रही थी। जलालाबाद के गजनी होटल से रवाना होने के बाद किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। कूलर में भरा हुआ पानी कब का खत्म हो चुका था। बाज दूर अंदेश मुसाफिर अपने साथ खुर्दनोश का सामान ले आए थे, मगर रास्ते में देर तक रुके रहने की वजह से वो सामान भी साथ छोड़ चुका था। मुतअद्दिद मुसाफिरों की फरमाइश पर रोशन खान ने कोस्टर किनारे से लगा दी। होटल के अमले में हलचल पैदा होगी। चारपाइयों पर सस्ताते हुए लोग इश्तियाक और दिलचस्पी से उठ बैठे, लेकिन उनमें से किसी ने कोस्टर से उतरने वाले मुसाफिरों से बोलचाल में पहल नहीं की। इन दिनों पेशावर और सूबा सरहद की तहजीब और मुआशरत और मईशत पर बदहाल और नाख्वांदा अफगान मुहाजिरीन की भारी यलगार के मनफी असरात बहुत ज्यादा उजागर नहीं हो सके थे, लेकिन दोनों तरफ सर्दमेरी और मोहतात मेल जोल का रवैया नुमाया था। चारपाइयों पर बैठे हुए अफराद कोस्टर की खिड़कियों में नजर आने वाले निस्वानी चेहरों को इन्हिमाक और ठठाई से ताक रहे थे। संगलास और खतरनाक रास्तों पर सफर और दूसरों का बोझ ढोने में जिंदगी गुजार देने वाले इन जफाकश मर्दों के लिए हर बेहजाब निस्वानी चेहरा नजरबाजी की एक सनसनीखेज दावत का उन्वान बन जाता था। वो अपनी औरतों को सख्त और मुकम्मल पर्दा कराते थे और बंद संवर कर घरों से बाहर निकलने वालियों को देखकर दिल खुश करना अपना हक समझते थे। उनमें से किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन फरसूदा रवायात के शिकंजों में जकड़े हुए किसी जहन के उलटने में ज्यादा देर नहीं लगती। इसलिए मैंने वीरा और गजाला को कोस्टर से नीचे उतरने से रोक दिया। मैं सुल्तान शाह के साथ नीचे उतरा तो एलन हमारी तरफ चला आ रहा था। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? उसने दोस्ताना लहजे में अंग्रेजी में सवाल किया। पेशावर के किसी अच्छे होटल में ऐश करेंगे, मैंने गोल मोल सा जवाब दिया। तुम्हारे लिए काम करने के बारे में क्या ख्याल है? उसने राजदाराना लहजा में पूछा। मुश्किल है, तुम खुद किसी के लिए काम कर रहे हो। इस सफर में हम तुम्हारी माली हालत का अंदाजा कर चुके हैं। तुम हमारे अखराजात भी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। मैंने होटल वाले को चाय और खाने की चंद चीजों का ऑर्डर देने के बाद कहा, वैसे तुम हमसे क्या काम लेना चाहते हो? तुम्हें विल जॉन और पाल का सुराग लगाना था। वीरा तुम्हें उनके अंजाम से आगाह कर चुकी है। अब तुम पाकिस्तान में रहकर क्या करना चाह रहे हो? वीरा के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, वो एक गहरा सांस लेकर बोला, लेकिन तुम तीनों के बारे में मेरी मालूमात सिफर है। मेरा अंदाजा है कि तुम भी वीरा की लाइन के लोग होगे। मेरे लिए बुनियादी तौर पर यह बात बहुत अहम है कि तुम पाकिस्तान की ज़ेरे ज़मीन दुनिया के पढ़े लिखे लोग हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे काम करने में आसानी होगी। मैंने तुम्हारे काम की नौयत के बारे में पूछा था। मैंने उसे याद दिलाया। सच पूछो तो मुझे भी काम का सही अंदाजा नहीं है। कदर तवक्कुफ के बाद उसने कुल दिल से एतराफ़ कर लिया। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि जिस काम के लिए कर्नल जैसी जोन्स अपने अकलौते बेटे को पाकिस्तान भेज सकता है, उस काम में बहुत पैसा होगा और फिर दास अलमेडा जैसा अरबपति इस काम में दिलचस्पी ले रहा है। इससे हमारी कोई डील बन गई तो हम सब के वारे के न्यारे हो जाएंगे। तुम हेरोइन को बिल्कुल भूल जाओगे। तुमसे किसने कहा कि हम हेरोइन में डील करते हैं? मैंने खुश्क लहजे में पूछा। मेरा अंदाजा है, वो इत्मीनान से बोला। वीरा हेरोइन की शहजादी है, तुम लोग उसके साथ हो। कंदूर खान तुम्हारा मेजबान था। इसका ताल्लुक शिंगारा वैली से है और वहां अफीम की सबसे ज्यादा फसलें होती हैं। वो सारी अफीम हेरोइन बनाने के काम आती है। ये सारे हकायक एक खास समत की निशानदेही करते। तुम डैनी होते तो मुझे सब कुछ समझने में आसानी हो जाती, क्योंकि डैनी शीर से बागी होने के बावजूद वीरा का बेहतरीन दोस्त बल्कि शायद महबूब भी है। मगर तुम मुसर हो कि तुम डैनी नहीं तनवीर हो। ऐसी सूरत में मैं अंदाजे ही लगा सकता हूँ। मैंने उसे यह बताना जरूरी नहीं समझा कि हमने शिंगारा वैली का सफर अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि हमें अगवा करके वहां ले जाया गया था। उसकी किसी बात की तरदीद किए बगैर मैंने बस इतना कहा कि वो चाहे तो हमें अपने ठिकाने से आगाह करते। उसके साथ काम करने का मूड हुआ तो उससे रब्ता कर लिया जाएगा। उसने अपने साथी से मशवरा करके जवाब देने का वादा किया और मैं वहां से आगे बढ़ गया। मैं सुल्तान शाह के साथ बातें करता टहल रहा था कि अचानक सामने से एक कड़ियल पठान मुझे जोर से शाना मारता हुआ गुजर गया। उसके कंधे पर पड़ी हुई चादर में से क्लचनकोफ की नाल वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। उसके गुजरने के लिए काफी जगह मौजूद थी। साफ जाहिर था कि उसने दानिस्ता मेरे साथ शरारत की थी। सुल्तान शाह ने पलटकर उसे खूनखार नजरों से घूरा, मगर मैं फौरन ही उसे रोक लिया। इस वक्त हम इलाका गैर में है। अपने दिमाग को ठंडा रखो। यहाँ किसी से उलझने की कोशिश हमें महंगी पड़ सकती है। हो सकता है कि वो नशे में हो और अपनी झोंक में मुझसे आ टकराया हो। वो मुसल्ला है, तलखी बड़ी और वो फायरिंग पर तुल गया तो ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा। कमाल की बात यही है कि यहाँ कोई नशा नहीं करता। सुल्तान शाह बोला, यहाँ पर से आम चरस और हेरोइन का लेन देन होता है, लेकिन कोई इन मंशियात को इस्तेमाल नहीं करता। जिरगे ने इन मंशियात के इस्तेमाल पर कड़ी सजाएं मुकर्रर की हुई हैं, लेकिन शराब तो पी जाती होगी। मैंने ताई तलब लहजा में कहा, इस बारे में मुझे इल्म नहीं। वो बदमाश अगर शराबी होता तो उसके मुंह से अल्कोहल के भभके उठ रहे होते। उसने बिला वजह तुम्हारी तस्दीक की है। हो सकता है कि वो तुमसे अड़ने की कोशिश कर रहा हो। अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करके तुम उसके जाल में फंस जाते।
मैंने उसी वजह से तुम्हें रोका है। किसी सरफिरे मकामी से तकरार का अंदेशा इतना संगीन था कि मैं होटल वाले को चाय और दीगर लवाजम कोस्टर में भिजवाने की हदायत करके वापस चल दिया। वापसी पर वही नौजवान एक चारपाई पर विराजमान नजर आया। उसकी चैलेंज करती हुई चमकदार आंखें मेरी तरफ मरकूज थी। जूं ही मेरी और उसकी नजरें चार हुई, उसने तहकीर अमेज अंदाज में हमारे आगे नस्वार ज़्यादा थूक की पिचकारी मारी, मगर मैं उसे दरगुजर करके तेजी से आगे निकल गया। इस वक्त मैं किसी भी झगड़े से बचने के लिए कोशिश था। समझ में नहीं आता कि वो सारे मुसाफिरों को छोड़कर हम पर ही क्यों मेहरबान हो रहा है। मैंने पुरतशवीश लहजा में कहा, तुम ठीक कह रहे थे। उसकी चमकीली आंखें बता रही हैं कि इस वक्त वो नशे में नहीं है और बज़ाहिर अकेला है। सुल्तान शाह ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, उसे अकेला ना समझो, बात बढ़ते ही उसके दसियों हामी सामने आ जाएंगे। औरतों के सामने इस बदमज़गी का जिक्र नहीं करना। उसे हदायत करके मैं कोस्टर में चला गया। इस वक्त वही जगह सबसे बेहतर थी। सुल्तान शाह मेरे साथ था। इस वक्त कोस्टर में एक तो मर्द मौजूद थे। औरतों में से किसी ने कदम नीचे रखने की गलती नहीं की थी। वो सब दिन भर की भूखी प्यासी थी और दिल खोल कर अशाए खुर्दनोश से इंसाफ कर रही थी। बाद में खजाला और वीरा भी उन्हीं के साथ शरीक हो गई। शदीद तलब के आलम में बासी टोस्ट और भपकेदार मक्खन भी उन्हें अंधाधुंध खुर्दनोश से नहीं रोक सके। तकरीबन 10 घंटे तक वहां कयाम के बाद कोस्टर लंडी कोतल से आगे चल पड़ी और रास्ता वीरान होने की वजह से चंद ही मिनट में आबादी से बाहर निकल आई। ड्राइवर अपनी धुन में गाड़ी तोड़ाए जा रहा था। रास्ता साफ होने के बावजूद उसने कोस्टर की रफ्तार कम कर खैबर के सिलसिला के दरमियान से गुजरने वाली बलदार सड़क के पीछे हम उसके देखे भाले थे, इसलिए उसे अपनी रफ्तार बरकरार रखने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद वो उलझन में मुब्तला नजर आने लगा। रास्ता साफ होने के बावजूद उसने कोस्टर की रफ्तार कम कर दी और अपने सामने विंडशील्ड के साथ नस्ब मुतअद्दिद अकब नुमा आइनों से छेड़छाड़ में मसरूफ हो गया। ड्राइविंग के साथ साथ वो आइनों के जाविये भी तब्दील कर रहा था और बार बार अपनी निशिस्त में बेचैनी से पहलू बदल रहा था। उसकी हरकत से यूं महसूस हो रहा था जैसे वो कोस्टर के अकब में किसी नादीदा शय को इन आइनों की गिरफ्त में लेने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। रोशन खान की मुस्तरिबाना हरकत इतनी वाज़ेह थी कि मैं चौंके बगैर नहीं रह सका और तजस्सुस के आलम में पलट कर पीछे का जायजा लेने लगा। अकबी गिलास शील्ड में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सड़क तारीक और वीरान पड़ी हुई थी। मैं उलझन का शिकार हो गया कि रोशन खान क्या तलाश करने की कोशिश कर रहा था। मेरी इस्तराब को देखते हुए पीटर भी चौंक पड़ा। तुम बार बार पीछे मुड़कर क्या देख रहे हो? मैं कुछ नहीं देख रहा, मुझे रोशन खान की तरफ से फिक्र लाक है। मैंने कहा, इसे पीछे की फिक्र है, लेकिन मुझे कोस्टर के पीछे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सड़क बिल्कुल वीरान और सुनसान पड़ी हुई है। हम दोनों की गुफ्तगू अंग्रेजी में हुई थी जो शायद रोशन खान के पल्ले नहीं पड़ सकी हो, लेकिन मेरे खामोश होते ही एलन उनसे मुखातिब होगा, रोशन खान, डैनी तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है? तुम परेशान क्यों हो? फिर वही डैनी। मैंने पुरजोर लहजे में एहतजाज किया। मैं बता चुका हूं कि मेरा नाम तनवीर है, मुझे अफसोस है। एलन ने अंग्रेजी में मुआजरत करते हुए कहा, तुम्हारी जात के हवाले से डैनी का नाम मेरे ज़हन से किसी बिच्छू की तरह छिपा कर रह गया है। आइंदा मैं मोहतात रहूंगा, मगर तुम मेरी ये कमजोरी नोट कर लो कि मैं डैनी कहूं या तनवीर, मकसद तुम्हारी जात से होगा। फिर तुम भी ये मेरी कमजोरी नोट कर लो कि मैं बिच्छू कहूं या एलन, हवाला तुम्हारी जात का होगा। मैंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। एलन होले से हंस पड़ा। ओह, तुम तो नाराज हो गए। मैं तुम्हारी तौहीन या तज़हीक करने का इरादा नहीं रखता था। अगर तुम इस बारे में इतने ही हिसास हो तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा जिक्र तनवीर के नाम से करूं। मैं परेशान नहीं हूं। एलन की गुफ्तगू में वक्फा आते ही रोशन खान बोल पड़ा, फिर तुम पहलू बदल बदल कर अकब आईने में क्या देखने की कोशिश कर रहे हो? एलन ने पूछा। ओह, वही तवील सांस लेकर बोला, मेरा अंदाजा है कि कोई कार अपने हेड लैंप रोशन किए बगैर इस खतरनाक रास्ते पर हमारा पीछा कर रही है। इस रास्ते पर यूं सफर करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ होता है। रोशनियां गुल हैं, तो तुम्हें कैसे पता चला कि पीछे कोई कार आ रही है? एलन ने पूछा। हम बुलंदी से नशीब की तरफ जा रहे हैं, रोशन खान बोला। वो मोड़ पर ब्रेक लगाते हैं तो उनकी एक भी सुर्ख रोशनियां जल उठती हैं और उनका सुर्ख निकास मुझे चौंका देता है। पता नहीं वो कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं। एलन ने लुकमा दिया और मुड़कर पीछे देखने लगा। बज़ाहिर सड़क वीरान नजर आ रही है। एलन पुरतशवीश लहजे में मुड़मुड़ाया। इस वक्त दूर दूर तक हमारी कोस्टर के सिवा कोई और गाड़ी नहीं है जो ये समझ लिया जाए कि वो इसका पीछा कर रहे हैं। वो हमारे पीछे आ रहे हैं। रोशन खान उसकी बात काट कर बोला, इन्हें आगे निकल जाने का मौका देने के लिए मैं कई बार अपनी रफ्तार कम कर चुका हूँ, लेकिन वो आगे निकलने के बजाय खुद भी रफ्तार कम कर लेते हैं। लंडी कोतल तक मैदान बिल्कुल साफ था। ये लोग वहीं से हमारे पीछे लगे हैं। अगर वो रास्ते में हमसे उलझ बैठे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरा पिस्तौल टूल बक्स में पड़ा होगा। तुम में से किसी के पास कोई हथियार है? रास्ते की तलाशियों के खौफ से सभी को गैर मुसल्ला कर दिया गया था। एलन ने कहा, हमारे हथियार थैले में हैं जो कोस्टर की छत पर है। तुम दूसरे मुसाफिरों से पूछ लो, शायद किसी ने कोई हथियार छुपाया हुआ हो। रोशन खान ने कोस्टर के मुसाफिरों से किसी आदशी हथियार के बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि एलन की हदायत की रोशनी में सबने गैर मुसल्ला होकर अपने हथियार सामान में डाल दिए थे और इस वक्त किसी के पास कोई हथियार मौजूद नहीं था।
इस सवाल के नतीजे में मुसाफिरों में चहमगोइयों का सिलसिला शुरू हो गया था। कई मुतरद्दिद मुसाफिर अपनी जगह छोड़कर आगे आ गए ताकि क्लीनर और ड्राइवर से कुछ मालूमात हासिल कर सके। ड्राइवर ने उन्हें अपने ताक़ुब में आने वाली मुश्तबा कार के बारे में आगाह करने के बाद क्लीनर को चलती हुई गाड़ी की छत पर भेजने का फैसला कर लिया। कोस्टर की छत तक रसाई के लिए अकब में आईनी जीना मौजूद था। क्लीनर को दरवाजे से वहां तक पहुंचने के लिए संगीन खतरा मोल लेना पड़ता। एक इम्कान ये भी था कि हमारे पीछे आने वाले उसको देखकर फौरी तौर पर किसी कार्रवाई का आगाज कर बैठते, लेकिन इस सूरत हाल से निमटने के लिए वो खतरा मोल लेना नागुज़ीर हो चुका था। मुसाफिरों ने क्लीनर को बखुशी इजाजत दे दी थी कि वो जिस बैग से चाहे हथियार निकाल लाए। ड्राइवर ने क्लीनर की सहूलत के लिए कोस्टर की रफ्तार कदरे कम कर दी और वो दरवाजा खोलकर खिड़कियों और बाड़ी के किनारों का सहारा लेता हुआ बाहर तारीकी में रिंग गया। क्लीनर मुश्किल पीछे पहुंचा होगा कि ताक़ुब करने वालों ने अंधेरे के बावजूद उसकी झलक देख ली और अचानक ही अपनी गाड़ी के हेडलैंप रोशन कर दिए और वो वीराना तेज रोशनी में नहा गया। इसी लम्हे किसी खुदकार मगर हल्की मशीन गन से 3 गोलियों का एक हल्का सा ब्रस्ट मारा गया और मुसाफिरों में खौफ और इज़्तिराब की लहर तोड़ गई। वो फायर क्लीनर को खौफज़दा करने के लिए किए गए थे क्योंकि उनमें से कोई गोली कोस्टर के किसी अकबी हिस्से में नहीं लगी थी। फायर होने के बाद पीछे वाली गाड़ी की रफ्तार अचानक तेज होगी। उसी के साथ हेडलैंप भी तवातर के साथ धीमे और तेज किए जाने लगे। फिर वो कार सुरात से कोस्टर के अकबी हिस्से के बराबर में आई और उसमें से किसी ने वैशाना लबो लहजे में चीख कर कुछ कहा और कोस्टर की आईनी सीढ़ी से लटका हुआ क्लीनर ऊपर जाने के बजाय दरवाजे की तरफ वापस लौटने लगा। क्लीनर के पीछे से लौटने तक वो कार कोस्टर के अकबी हिस्से से तकरीबन चिपक कर दौड़ती रही। जब इन्हें इत्मीनान हो गया कि क्लीनर दरवाजे की तरफ लौट रहा है तो उन्होंने यकलख्त कार की रफ्तार बढ़ा दी और फिर दाहिनी तरफ से कोस्टर को इस तरह दबाना शुरू किया कि हमारे ड्राइवर को किनारे की तरफ होकर रफ्तार में कमी करना पड़ गई। रोशन खान महारत और हाजिर दिमागी से काम न लेता तो इससे कार और कोस्टर में खासा खतरनाक तसादुम हो सकता था। ये एक बदही अमर था कि इस तसादुम में कार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता, शायद इसके मुसाफिर भी मजरूह हो जाते, लेकिन ऐसे तसादुम के नताज खास से संगीन हो सकते थे। वो लोग हथियारों से लैस थे और रोशन खान की किसी भी हट तरमी पर बरहम होकर कोस्टर के मुसाफिरों को खून में नहला सकते थे। वो नए मॉडल की सफेद करोला थी। उसे सामने आकर कोस्टर का रास्ता इस तरह मसदूद किया कि रोशन खान को रफ्तार कम करते करते कोस्टर को रोक लेना पड़ा। इस असना में अगली कार से 3 मुसल्ला मकामी फुर्ती से नीचे आ चुके थे। उन तीनों के हाथों में क्लाशिनकोफ़ें थी जिनमें बड़े मैगजीन चढ़े हुए थे। शायद वो कोस्टर को रोकने से पहले ही अपनी हिकमत अमली तय कर चुके थे क्योंकि उन्होंने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। एक शख्स बिजली किसी तेजी से रोशन खान वाले दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोलकर उसे बेरहमी से नीचे घसीट लिया। बकिया 2 अफराद सवारियों के लिए मखसूस दरवाजे की तरफ लपके। एक अपनी क्लाशिनकोफ ताने बाहर खड़ा रहा, दूसरा दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया। इस वक्त सबकी तवज्जो इस तरफ मरकूज थी। मैं भी उस सनसनी के ड्रामे की तरफ मुतवज्जा था। अंदर आने वाले के चेहरे पर निगाह पड़ते ही मेरे वजूद में सनसनी सरायत कर गई क्योंकि वो यही लफंगा था जो लंडी कोतल में मुझे इश्तियाल दिलाने की नाकाम कोशिश कर चुका था। उसकी क्लाशिनकोफ की नाल कोस्टर की तरफ उठी हुई थी और सफाकाना निगाहें मुसाफिरों पर दौड़ रही थी। मुझ पर निगाह पड़ते ही उसने अपनी क्लाशिनकोफ की नाल का रुख मेरी तरफ फेर दिया और जहरीले लहजे में बोला, अपने हाथ उठाकर खामोशी से नीचे आ जाओ। चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बकिए उधेड़ डालूंगा। उसका खतरनाक तेवर देखते हुए मैंने फिलफोर अपने दोनों हाथ सिर से ऊपर उठा लिए और नरमी से कहा, ब्रादर तुमको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे नीचे उतरने का हुक्म दे रहे हो। उसने अपनी क्लाशिनकोफ की नाल कदरे तिरछी करके ट्रैगर दबा दिया। ये के बाद दीगर कई गोलियां कोस्टर की छत को फाड़ती हुई आसमान की तरफ निकल गई। फायर करने के बाद गुर्राती हुई आवाज में बोला, नीचे उतरो और हमारी गाड़ी में सवार हो जाओ वरना अगला प्रश्न तुम्हारे बदन को छल नहीं कर देगा। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मैं अपने शिकार को अच्छी तरह पहचानता हूँ। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो जो कुछ कह रहा था उस पर अमल करने पर भी कादिर था। डंडी कोतल में मुझसे तज़हीक अमेज अंदाज में टकरा कर वो अपनी नीयत का इंदिया दे चुका था, इसलिए मैंने खामोशी से अपनी जगह छोड़ दी। क्लाशिनकोफ बर्दार शख्स के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट उभर आई और वो इस्तिज़ाइया लहजे में गोया हुआ, औरत तुम बैठ जाओ, हम औरतों से नहीं सिर्फ मर्दों से लड़ते हैं, हमारा मामला सिर्फ डैनी से है। मैं उसकी जुबान से अपना नाम सुनकर चौंक पड़ा। मैंने कोस्टर से निकासी के रास्ते की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना जरूरी समझता हूँ। मेरा नाम डैनी नहीं तनवीर है, सैयद तनवीर अली। वो बेअतबारी से हंस पड़ा। मुझे से कोई गर्ज नहीं कि तुम सैयद हो या कसाई, नाम धोखा दे सकते हैं लेकिन तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने तस्वीर की मदद से तुम्हें पहचाना है। अब 1.5 हफ्ते से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हमें मालूम था कि तुम शिंगारा वैली से जिंदा लौटो या मुर्दा इसी रास्ते से लौटोगे। तुम डैनी या सैयद तनवीर अली के बजाय फूलन देवी का सुसर होने का दावा करो तब भी तुम्हारी गुलू खुलासी नहीं हो सकेगी। शराफत से नीचे उतर जाओ। वो चालाक और बाखबर था।
मैं मजीद कुछ कहे बगैर कोस्टर से नीचे उतर गया।